Hello students, Namaste to all of you. Yesterday we talked about present tense. Those were present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. We also talk about the definition of present tense. We talk about the definition of tenses, and now today we are going to discuss about past tense. So in today's class we will be focusing about the past tenses, the four types of past tenses: past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. The students who have not watched the video 1, I request them to kindly watch the first video made on tenses. The link is given in the description box. You can watch the video 1, and this second one on past tense we are going to talk about today. So let's start. These are the rule for the past tense. The rule of present we already discussed, so we will talk about only the rules of past tense. In past tense we use second form of the verb for past indefinite. For past continuous we are using was were first form of the verb plus ing. Past perfect we are using had plus third form, and for past perfect continuous we are using had been first form of the verb plus ing. Now let's try to understand how we can just learn it in a better way. With understanding, with proper knowledge, you will be able to understand it for a long span of time. It can help you to memorize well. Okay, so let's see. In the present tense we always use first form of the verb, and in the past tense we always use the second form of the verb. तो क्योंकि ये past tense है, that's why we are using second form of the verb. In the same way, in the present continuous tense we are using is mr. Now is mr's past form is was were. Was we are using for singular and were we are using for plural. Then we have first form of the verb plus ing. Okay. Now in perfect tense, past perfect tense, the action is already done in past. So it started from one past moment and it is completed in the past moment. Action is completed in the past, already completed in the past, started in a past and already completed in a past. That's why we are using had plus third form here. In past perfect continuous tense, the action though started in a past, but it is completed. It is completed in a moment of past, in a specific moment of past, or we can say that we don't know exactly about when it was completed. So in the past perfect continuous tense, we don't know when the action is exactly completed. It still goes on. So in past, the action when still goes on, then it is called past perfect continuous tense. Whereas in past perfect, the action was started from one specific point, from one specific past point, and it was completed to one specific past frame. Whereas in the past perfect continuous tense, the action was started in past and it still continuous in the past, but we don't know exactly when it was completed. Okay, so this is called past perfect continuous tense. तो सीधी भाषा में कहें तो past indefinite में आपने second form of the verb, action past में हो गया. पास्ट कॉन्टीन्यूस मतलब जो पास्ट का नाउ मोमेंट था, पास्ट में जो चल रहा था. ठीक. पास्ट परफेक्ट मीन्स जो एक्शन पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया. पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम में एक्शन शुरू हुआ बट पास्ट में ही कंटिन्यू है स्टिल. वी डोंट नो व्हेन इट इज़ कंप्लीटेड एग्जैक्टली. ठीक है, तो इसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. तो ये तो बेटा हो गए हमारे रूल्स. अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को इन डिटेल में. ठीक, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में. जो बच्चों ने नहीं पढ़ा है, इसके बारे में नहीं स्टडी किया, मेरी रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आपको, उसमें फर्स्ट वीडियो का लिंक है, आप उसे टैप कीजिए एंड फर्स्ट वीडियो वॉच करके देन इस वीडियो को देखिए. ठीक है. सो पास्ट टेंस देखते हैं. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूस. तो ये हमारे पास रूल है. अब इसको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक. सबसे पहले देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस बेटा जो हमें अभी यहाँ पे दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में एक्शन जो है
ये कंटिन्यूस रिकरिंग एक्शंस हैं जो कि अकर हो चुके हैं, पास्ट में हो गए हैं, जो हो गया, ठीक। जैसे कि कुछ इंडेफिनिट का मतलब है हैबिट, इंडेफिनिट का मतलब है व्हाट इज़ रीअकरिंग, जो कि बार बार होता है या होता था, ठीक, उसको कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो क्योंकि प्रेजेंट में हमने बात किया था होता, वहाँ पे है कहा गया था, अब पास्ट में वो एक्शन ऑलरेडी हो गया, होता था, ठीक है। जैसे आई प्लेड, मैं खेल चुका हूँ, मैं खेलता, मैंने खेला और मैं खेल चुका हूँ इस वक्त, तो वो पास्ट का एक्शन हो गया। ही प्लेड, है ना, वो खेल लिया वो। इसी तरह से शी प्लेड, ये हमारे पास 2 सेंटेंसेस है। तो अब ये होता क्या है, यहाँ पे पास्ट का जो टाइम फ्रेम है वो अपने आप में पास्ट इंडेफिनिट का बहुत वास्ट है। उसमें एक पास्ट का नाउ मोमेंट है जिसको हम कह देते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूस। इसको क्या कह देते हैं, पास्ट कॉन्टीन्यूस। तो जो पास्ट का नाउ मोमेंट होगा, पास्ट का एक स्पेसिफिक मोमेंट, कि मान लो कि पास्ट के का नाउ मोमेंट जिसमें कोई असाइनमेंट कर रहा था, मैं अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा था, जब तुमने मुझे कॉल की मैं अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा था। आई वॉज कंप्लीटिंग माई असाइनमेंट व्हेन यू कॉल्ड मी। तो यहाँ पे अब ये पता चल गया कि उस वक्त के नाउ मोमेंट में वो अपनी उस असाइनमेंट को कंप्लीट कर रहा था, वो पास्ट का नाउ मोमेंट था, ठीक। और पास्ट इंडेफिनिट में जो एक्शन, इवेंट और कंडीशन जो रीअकर हो रहे हैं, रीअकर होते थे, है ना, हो चुके हैं, सॉरी, तो वो हो गए पास्ट टेंस में आ गए, ठीक। इसमें 2 एग्जांपल दी हैं, आई प्लेड, ही प्लेड, शी प्लेड एंड दे प्लेड। इसको सिंपल वे से इसी तरह से समझिए, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें जिसमें भी आ जाएगी वो पास्ट टेंस है और एक्शन पास्ट का है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूस में। पास्ट कॉन्टीन्यूस डिस्क्राइब करता है ऑन गोइंग इन द पास्ट, जो पास्ट में कम नाउ मोमेंट था। जैसे मैं बार बार आपको कहता हूँ पास्ट का नाउ मोमेंट, जो कि पास्ट में ऑन गोइंग है, जो पास्ट में चल रहा है, ठीक। जैसे अभी इस वक्त टाइम हो रहा है मेरी वॉच में 4:56, तो 4:56 में कल क्या चल रहा था वो पास्ट का नाउ मोमेंट होगा, है ना। तो ऐसे आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, अभी किसी पास्ट के नाउ मोमेंट की बात कर रहा था जब वो क्या खेल रहा था, ठीक, मतलब मैं अपनी बात कर रहा था। इसी तरह से ही वॉज प्लेइंग, शी वॉज प्लेइंग, यू वर प्लेइंग। तो ये हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं। अब इसमें देखिए आई के साथ और जितने भी सिंगुलर हैं उन सभी के साथ में हम वॉज यूज़ करते हैं, बाकी जितना भी प्लूरल है उनके साथ वर यूज़ करते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि देखिए आई के साथ में सिंगुलर के रूल फॉलो नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के साथ में हमने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई थी। आई के साथ हमने वहाँ पे हमने आई के साथ में हैज़ नहीं लगाया, आई के साथ हैव लगाया, बट यहाँ आई के साथ वॉज लग रहा है। तो ये एक्चुअल में लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज में कई चीज़ें अथॉरिटेटिव होती हैं, मतलब अथॉरिटी की तरफ से ये कहा गया, ऐसा चलता आ रहा है, ऐसा हो रहा है, कंजर्वेटिव कंसेप्ट है। तो क्योंकि ये चल रहा है इसलिए हम इसमें आई के साथ वॉज लगाते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक हार्ड एंड फास्ट रूल अगर मैं आपको बताना चाहूँ, देन देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। आई के साथ में वॉज लग रहा है, लगाते रहे हैं इसलिए लग रहा है, ठीक। बट वहाँ पे हमने देखा था कि आई के साथ में प्लूरल के रूल इसलिए लगाए गए थे बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट आई, तो आई अपने आप में एक सिंगुलर वर्ड नहीं है। आई इज़ इटसेल्फ अ कंप्लीट पर्सनैलिटी जिसमें कई लोगों का इन्फ्लुएंस होता है आपकी लाइफ में, ठीक। बट यहाँ पे हम आई के साथ में वॉज का ही रूल फॉलो करेंगे, ठीक है बेटा। अब इसी तरह से देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। ये पास्ट कॉन्टीन्यूस तो आपको समझ आ जाएगा, ये जैसे कि हमने पास्ट कॉन्टीन्यूस, जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में बात की थी, वैसे ही हम पास्ट कॉन्टीन्यूस को भी समझेंगे। ये देखो, ये अपने आप में पूरा पास्ट इंडेफिनिट है और उसमें जो एक नाउ मोमेंट है, पास्ट का जो नाउ मोमेंट है, पास्ट में जो ऑनगोइंग है, उसको कहा जाता है पास्ट कॉन्टीन्यूस। उसको क्या कहा जाता है? पास्ट कॉन्टीन्यूस। अंडरस्टूड। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने के लिए आपको फिर से एक बार डायग्राम बनाऊंगा, टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ जिसमें आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। तो टाइम फ्रेम में देखते हैं, ये देखिए, ये पास्ट, प्रेजेंट और ये फ्यूचर। तो पास्ट के एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक्शन शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। एक्शन पास्ट के एक पॉइंट ऑफ टाइम में शुरू होता है और पास्ट में ही ख़त्म हो जाता है। ऐसे टेंस को हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। आई हैड प्लेड, जैसे मैं खेल चुका था,
कि तुम व्हेन यू केम आई ऑलरेडी एट माई लंच, मैं अपना लंच कर चुका था। तो जब कोई चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, व्हेन आई रीच्ड द बस स्टेशन द बस हैड गॉन, बस जा चुकी थी। तो कोई भी चीज़ जब वहाँ पे हमें पता चले कोई एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया पास्ट के एक मोमेंट में, तो उसको कह दिया जाता है पास्ट परफेक्ट। जैसे आई हैड प्लेड मीन्स मैं खेल चुका था उस वक्त, ही हैड प्लेड वो खेल चुका था, शी हैड प्लेड वह खेल चुकी थी। ठीक, तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। और अगर इसको प्रेजेंट पे समझे तो प्रेजेंट में जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें एक्शन प्रेजेंट के एक पॉइंट ऑफ टाइम में कंप्लीट होता था, उसमें एक्शन प्रेजेंट के पॉइंट ऑफ टाइम में कंप्लीट होता था। बट यहाँ पे क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो पास्ट में जैसे कि हमने कहा पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम में शुरू हुआ और पास्ट में ही एक्शन कंप्लीट हो गया, उसको कहा जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, अब इसके बाद में देखते हैं बेटा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज्ड टू इंडिकेट दैट अ कंटिन्यूइंग एक्शन इन द पास्ट बिगन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। अब ये देखिए बहुत समझने वाली चीज़ है। ये इंडिकेट कहता है एक कंटिन्यूइंग एक्शन जो पास्ट में चलता है, जो शुरू हो जाता है बिफोर अनदर पास्ट एक्शन बिगन और इंटरप्टेड द फर्स्ट एक्शन। पहले एक्शन को इंटरप्ट किए बिना एक और पास्ट का एक्शन कंटिन्यूएशन में चलता रहता है वैसे। ठीक, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताता हूँ। He had been looking for a job for past many days. जैसे हमारे पास ये सेंटेंस, तो वो जॉब के लिए जॉब ढूंढ रहा है पास्ट मैनी डेज, पिछले कई दिनों से। हमें नहीं पता कितने दिनों से ढूंढ रहा है वो, बट हमें ये पता है कि पिछले कई दिनों से वो उसे ढूंढ रहा है। तो एक एक्शन तो है कि वो जॉब ढूंढ रहा है, दूसरा एक्शन ये है कि वो एक्शन एक तो पर्टिकुलर उसने एक पॉइंट टाइम पे शुरू किया था, और एक एक्शन अभी भी वो ढूंढ रहा है उस जॉब को। एक उसने स्टार्ट किया, एक वो हो गया, एक वो अभी भी कंटिन्यूसली कर रहा है, तो उसको कह देते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे कि इसमें कहा था द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इज़ यूज टू इंडिकेट दैट अ कंटिन्यूइंग एक्शन इन द पास्ट बिगन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन बिगेन और इंटरप्टेड द फर्स्ट एक्शन। जैसे आई हैड बीन प्लेइंग मीन्स मैं खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग। तो मतलब अब ये सेंटेंस जो है उसमें वो कह रहा है वो एक्शन, एक तो एक्शन उसने शुरू किया खेलने का, और वो अब पास्ट के ही एक टाइम पे भी खेल रहा है। तो जब एक्शन जो है वो पास्ट का भी हो, पास्ट के एक पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू भी हुआ है और पास्ट में ही कंटिन्यू भी है एक्शन, उसको कह दिया जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मतलब पास्ट के एक पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू तो हुआ और या पीरियड ऑफ टाइम से शुरू तो हुआ, बट वो अब अभी पास्ट के ही एक स्पेसिफिक टाइम में स्टिल गोइंग ऑन है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे इसको आप थोड़ा और बेटर वे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। I had been playing since मॉर्निंग। तो वो कहता है कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ। तो सुबह से वो खेल रहा है, मतलब मैं सुबह से खेल रहा हूँ। तो एक एक्शन जो उसने सुबह में शुरू किया था और जो वो अभी भी कंटिन्यूएशन में है, तो उसको कह दिया जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक हमारे पास टाइम लाइन आ गई, ये पास्ट में हो गया, प्रेजेंट, और ये हो गया फ्यूचर। ठीक है, अब देखिए ये एक्शन जो था हमने
पास्ट के एक पॉइंट ऑफ टाइम पे शुरू हुआ और स्टिल कंटिन्यूएशन में है, मतलब उस कंप्लीट नहीं हुआ, परफेक्ट नहीं हुआ। एक्शन पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू तो हो रहा है, हमें पता है वो पास्ट का कोई पॉइंट ऑफ टाइम होगा या पीरियड ऑफ टाइम होगा। पीरियड ऑफ टाइम में हम फॉर यूज़ कर लेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस यूज़ कर लेंगे, बट वो एक्शन कंटिन्यूएशन में ही है, वो ख़त्म नहीं हुआ अभी। ठीक, तो जो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, कंटिन्यूएशन में है, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम से शुरू हुआ है, उसको कह दिया जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है बेटा, तो दिस इज़ द डेफिनेशन फॉर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड दीज आर द टू एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स इनकम्प्लीट है, इसके साथ सिंस और फॉर यूज़ करोगे तो बेटर समझ आएगा, इसलिए दैट्स वाई आई गेव यू द एग्जाम्पल बाई यूजिंग सिंस एंड फॉर। सो दिस वी हैव रेड इन टुडेज क्लास, यू जस्ट प्लीज़ रिवाइज देम। इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और ये हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स इसकी दी थी, ये चारों टेंसेस की। सो आई होप आपको पास्ट इंडेफिनिट पता चल गया होगा। एक बार रिकैप देख लेते हैं अच्छे से। पास्ट इंडेफिनिट, अब जो पास्ट में जो चीज़ें अकर हो रही हैं, पास्ट में जो हैबिट्स थी, पास्ट में जो कंटिन्यूएशन में अकर हो रही थी चीज़ें, उन सभी को कह दिया जाता है इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट ब्रॉड है, उसमें पास्ट का नाउ मोमेंट भी आ जाता है और पास्ट के भी जितने एक्शन हुए थे वो आ जाते हैं। बट जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं, उसमें सिर्फ पास्ट का एक पर्टिकुलर मोमेंट आता है जो पास्ट का नाउ मोमेंट होता है। पास्ट में ऑन गोइंग एक्शंस होते हैं, जैसे आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, तो वो पास्ट के किसी ऑन गोइंग एक्शन में खेल रहा था। जैसे इस वक्त जो ये मेरा एक्शन है, ये इस वक्त 17:05 5:05 हो रहे हैं, ये आपका कल का जो टाइम होगा तो वो आपके लिए वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, मेरे लिए भी वो एक पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, बिकॉज पास्ट में ऑन गोइंग है। अभी इस वक्त ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, बट अगले दिन यही चीज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगी। ठीक है बेटा। और पास्ट परफेक्ट का, जैसे कि हमने देखा, पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, एक्शन पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम पे शुरू हुआ और पास्ट के ही पॉइंट ऑफ टाइम पे कंप्लीट हो गया। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम पे एक्शन शुरू होता है, पास्ट में ही ऑन गोइंग है बट कंप्लीट नहीं हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना काफ़ी है, एंड द नेक्स्ट टॉपिक फ्यूचर टेंसेज वी विल डिस्कस टुमारो। कल की क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।